फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं आता, सेकंड नहीं आता, थर्ड नहीं आता, फोर्थ नहीं आता, भाई फर्स्ट 5 क्वेश्चन देख लिए, 7 क्वेश्चन देख लिए, नहीं आते, किसी को नहीं आता। कुछ सब ऐसे बस खाली बैठ के अपनी स्क्रीन देख रहा है, एक दूसरे का मुंह देख रहे कि भाई क्या हो क्या रहा है। आता है तभी करेंगे, 60% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि सही होगा तभी हम आंसर मार्क करेंगे, वरना हम आंसर नहीं मार्क करेंगे, हमें कटवाने नहीं है। बट मत करना भाई, मत करना। ऐसा लगता है कि नहीं यार हो जाएगा, भगवान मेरे साथ ब्रो, चांस भूलिए ना। Hi everyone, my name is Tavish Lakhina. I just finished my class 12 and I am now going to convert to IIM Rohtak for the 5-year integrated program. I just got over the whole college phase of applying to colleges, of giving interviews and entrance exams, and I thought I should document that journey or like just tell about it to help my juniors or the generation after them to understand how the whole process works. So just like a heads up, these I'll put them on the screen. These are the colleges I got into and or waitlisted. So yeah, let's get started. I'll be switching between Hindi and English to ease like the video, right? So first of all, I took commerce with maths in class 12, and my last exam was on 26th March, and my first entrance exam was on 6th April, which was of Christ. I'm not gonna lie, I was really tired क्योंकि I had some exams which like didn't even have a day between them, back to back. तो बहुत सारे all nighters वगैरह पुल करने के बाद I finally was able to take a sigh of relief, you know, but वो भी बहुत short of था. So the course I applied for in Christ was BBA in International Business and Finance. अब क्राइस्ट के अलग अलग पेपर्स होते हैं फॉर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स, सो यू कैन चेक योर्स, बट फॉर BBA स्पेसिफिकली these are the following sections: accountancy, verbal ability, general knowledge, logical reasoning, quants and data interpretation. So accountancy stands for 10 marks, verbal ability 25, general knowledge 20, logical reasoning 25, quants 20 and data interpretation is also 20. Another thing is, as I said, I had like 5 days to prepare for this exam, and I'm not gonna lie, the preparation was not up to the par. But thankfully, Christ has a thing कि अगर आप बाकी सारे colleges देखोगे, then they do give a lot of preference to written exam. But Christ also gives a lot of preference to the interview. So अगर आपको लगता है कि आपको Christ का पेपर अच्छा नहीं गया, and वो most probably अच्छा नहीं जाएगा, because there are a lot of general knowledge and current affairs questions, and वो obviously कोई इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है, because they are very random. ऐसा नहीं है कि सिर्फ current affairs आ रहा है कि इस साल में जो भी हुआ या like last 3 months में जो भी हुआ सिर्फ वो आएगा. इसमें general static भी आता है. If I can recall some questions, they were where are the angel falls located, and there was also one question based on anemia, I guess, lack of RBCs. So these are some of the questions which were there. Another common question is how many national parks are there in India, how many tiger reserves, and yeah, basically split latest tiger reserve, stuff like that. So even if you do read a lot about it and do an intensive study, there is a huge probability कि तुम पूरा नहीं कर पाओगे, which is very understandable. Now another thing is कि the total time you get for the paper is 90 minutes, and there is also negative marking. 1 mark is awarded for the right answer, and 0.25 mark is deducted for a wrong answer. So I would suggest कि only do the questions you are really sure about. Like I know some of my friends, they were following this theory कि सिर्फ 1/4 मार्क्स से तो डिडक्ट होना है, तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो probably we'll get like better marks or something. मत करो यार, नहीं मिलेंगे. Only do the questions you're like incredibly sure in, or not even incredibly, then at least more than 60% sure in. तो हो जाता है seriously. बिकॉज क्राइस्ट डज वन थिंग कि वो तुम्हें अपने एग्ज़ाम और इंटरव्यू की डेट एक साथ दे देते हैं. तो मेरा एग्ज़ाम 6 अप्रैल को था और इंटरव्यू 12 अप्रैल को था. उसके लिए तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू की डेट ऑलरेडी तुम्हें मिल जाती है. एंड अकाउंटेंसी में वन मोर थिंग, यूजुअली 11th का आता है. मैंने जो मॉक्स किए थे उसमें जो 11th के फर्स्ट चैप्टर्स होते हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाले, उससे आया था. बट मेरा पेपर वॉज जस्ट फुल ऑफ BRS. उसमें सारे क्वेश्चन legit 9 out of 10 क्वेश्चन BRS के थे, एंड वो मैं बिल्कुल नहीं कर गई थी. तो अब मेरी गलती से कि तुम लोग करके चले जाना. ठीक है, नाउ लेट अस
मूव ऑन. अच्छा, ऑल्सो 12th April को एज आई सेड मेरा इंटरव्यू था, बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इंटरव्यूज. ओके, राइट. So we'll move on to the second paper I gave, which was Narsi Munji ka paper on April 19th. Now इसमें I had applied for 2 courses, which was BBA and second was Eco Honors, like first preferences वाले थे, दोनों मुंबई कैंपस थे. इसकी sections 3 होते हैं, quant, logical and verbal, and the time limit for these questions is 100 minutes, and total questions are 120. तीनों सेक्शंस में इक्वली 40 ईच डिवाइडेड होता है. सो एज यू कैन सी क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, बट डोंट वरी, दे मेक अप फॉर इट, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. लाइक नारसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसका तुम बहुत फ़ायदा उठाओ. ठीक है, लाइक मैंने अभी तुम्हें क्राइस्ट के लिए बोला कि अगर तुम बिल्कुल श्योर नहीं हो देन उस आंसर को छोड़ दो, मत मार्क करो. बट इसमें आई से द ऑपोजिट, इफ़ यू आर नॉट श्योर जस्ट पिक एनी रैंडम MCQ वॉट एवर यू वॉट एंड देन मूव अहेड. ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट उसमें अगर सही होगा तो तुम्हें कुछ तो मिल जाएगा ना. गलत हुआ तो यार वैसे तुम्हें नहीं मिल रहा था, बट एटलीस्ट तुक्का लग गया या फ्लूक लग गया, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, तुम आगे बढ़ जाओगे. एंड इस पर्टिकुलरली इस पेपर के लिए, नारसी के लिए, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आए थे. लाइक बाकी सारे पेपर्स में यू नो ऑलमोस्ट मोटे मोटे टॉपिक्स सेम होते हैं, बट इसमें एक अलग था, विच वॉज द फ्रंट टॉप व्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो उसमें वो तुम्हें एक बिल्डिंग दिखा देंगे, उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखा देंगे, और तुमसे पूछेंगे कि उसका बैक व्यू क्या होगा, या साइड व्यू और बैक व्यू दिखा देंगे, पूछेंगे कि टॉप व्यू क्या होगा, ऐसे करके. तो एक बार उसको प्रिपेयर करके चले जाना. राइट. सो थर्ड पेपर विच आई गिव, इसमें और लाइक नारसी में टाइम था कंसिडरेबल, अच्छा टाइम था. IIM रोहतक का आई गिव IP मैन. राइट. तो इसमें अगेन देर आर 3 क्वेश्चंस सेक्शंस. वन इज़ क्वांट, वन इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड वन इज़ वर्बल एबिलिटी. तीनों में 40 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, एंड टोटल टाइम भी 120 मिनट्स होता है. सी इसमें आई वुड सजेस्ट कि यू डू लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन सबसे पहले, सेक्शन सबसे पहले, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी. लाइक जेन्युइनली लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी आती है. एंड ऑल्सो अनदर थिंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें भी क्राइस्ट वाला फंडा यूज़ करेंगे. अगर आता है तभी करेंगे, 60% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की सही होगा तभी हम आंसर मार्क करेंगे, वरना हम आंसर नहीं मार्क करेंगे. हमें कटवाने नहीं है. ओवर डूइंग द क्वेश्चन इज अ थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल डू इट. आई ऑल्सो डिड इट. एंड जो आगे के एग्जाम्स आएंगे मैं तुम्हें बताऊँगी, बट मत करना भाई, मत करना. ऐसा लगता है कि नहीं यार हो जाएगा, भगवान मेरे साथ. ब्रो चांस क्यों लेना, तुम्हारे नेगेटिव में तो ज़्यादा कट गए. एक मार्क्स से लोगों की कट ऑफ निकल जाती है. इस बार कट ऑफ निकली थी 389, कुछ लोगों की 388, 387 आया है. तो मैं उन लोगों में से एक बनना है क्या? नहीं ना. तो फिर अपने क्यों कटवा रहे हो? मत कटवाओ, बस जितना आता उतना कर लो. ठीक है. तो आई थिंक आई डिड 112 क्वेश्चन आउट ऑफ 120, विच इज़ फेयर इनफ. तो तुम लोग अपना टारगेट रख सकते हो अराउंड 90 to 100 क्वेश्चन. लाइक उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है. बट इफ़ यू, इस बार कट ऑफ ज़्यादा निकल गई थी, बट यूजुअली इफ़ यू आर डूइंग लाइक अराउंड 100 क्वेश्चन देन बढ़िया है. ठीक है, उस पर तुम्हारा कट ऑफ निकल जाना चाहिए यूजुअली. अगेन इसकी मार्किंग स्कीम इज़ 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क और रॉन्ग आंसर. द टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर इज़ 480. देन आई हैड माई सिम्बॉयसिस का पेपर. भाई अब ना मेरे लगातार इतने सारे पेपर्स हैं, आई स्वेयर टू गॉड, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. एक एक करके भाई 4 दिन लगातार पेपर्स थे मेरे. सो सिम्बॉयसिस का आई हैड ऑन May 11th. इसमें आई हैड अप्लाई टू लाइक लॉट ऑफ कोर्सेज, बट द मेरे 3 मेन वंस इन पुणे का कैंपस वर BBA, BSc इकोनॉमिक्स एंड BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस. इसमें 4 सेक्शन थे लाइक BB के पेपर में. इट वॉज इंग्लिश 16 क्वेश्चन, क्वांट 16 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 16 क्वेश्चन, लॉजिकल 12 क्वेश्चन, एंड टोटल टाइम इज 60 मिनट्स. एंड टोटल क्वेश्चन आर ऑल्सो 60, अगेन 1 minute per question. एंड इसमें भी देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. नारसी सिम भी नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, बाकी सभी नेगेटिव मार्किंग है, इनमें बिल्कुल नहीं है. तो मेक यूज़ ऑफ दैट. जो तुम्हें नहीं आते हैं कर लो टिक. तुम्हारा क्या जा रहा है, इसमें कट थोड़ी ना है भाई. सही हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे ही कट रहे थे वो, मार्क दे दो. ठीक है, ज़्यादा अपनी उसमें अकड़ में मत रहो कि नहीं मैं तो सिर्फ सही. यार देखो, उन्होंने अगर तुम्हें प्रोविज़न दिया है तो वाई नॉट यूटिलाइज इट. राइट, करो यूटिलाइज, मज़ा आएगा. ओके, इसमें जनरल अवेयरनेस आती है और उसमें ही मोस्टली बच्चों का कटता है. बिकॉज एज आई सेड सिंधी का पेपर इज़ वेरी ईजी. तो पढ़ लेना थोड़ा सा. आई विल पुट अ लिंक down below, like Eagle links. I have made flashcards to help prep me for GK, CA, stat GK भी है and current affairs भी है.
तो you all can go through that. So the next paper I gave was on 12th May, which was IIM इंदौर का IPMAT. भाई इतना वाहियात और ट्रॉमाटाइजिंग पेपर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है. मेरे साइड में बच्चे बैठ के रो रहे थे. एंड लाइक देखो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं. वन इज़ क्वांट शॉर्ट आंसर टाइप, इट इज़ सब्जेक्टिव मतलब तुम्हें पूरा दिखाना नहीं है कि व्हाट यू आर डूइंग, तुम्हें बस अपना फाइनल आंसर लिखना. लाइक देयर विल बी नो ऑप्शंस, देयर विल जस्ट बी अ बॉक्स इन विच यू हैव टू राइट योर आंसर. ठीक है. सो वन वॉज दैट. The second section is first section quant short answer time में 15 questions होते हैं. The second is quant MCQs which has 30 questions, and the last section is verbal MCQs, English MCQs, which also has 30 questions. Right. So in our paper, the first like section subjective वाला was very easy. It was genuinely so easy. Like we were all on a high. We were like wow, पूरा पेपर आता है भाई, इंदौर तो confirmed है. ठीक है. एंड आई एम प्रिटी श्योर लाइक इन माई सेंटर द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बच्चों ने करे हैं वॉज एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 15. लाइक मैं खुद 10-12 करके आई थी आउट ऑफ 15. सो वी वर लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ ये तो हो जाएगा. एंड इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट होती है, तो तुम आगे नेक्स्ट सेक्शन पर नहीं बढ़ सकते हो या इधर उधर सेक्शंस में नहीं जा सकते हो. तो फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा. फिर से भाई सेकंड सेक्शन में विच वॉज क्वांट्स का MCQ. एंड ओ भाई साहब जो मूड चेंज हुआ है एटमॉस्फेयर में, यू कुड सी इट ब्रो. एवरीवन वाज जस्ट सो स्केर्ड बिकॉज आप लाइक आप क्वेश्चंस तो ऐसे स्वाइप कर सकते हो ना. फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं आता, सेकंड नहीं आता, थर्ड नहीं आता, फोर्थ नहीं आता. भाई फर्स्ट 5 क्वेश्चन देख लिए, 7 क्वेश्चन देख लिए, नहीं आते. किसी को नहीं आता. कुछ लोग ऐसे बस खाली बैठ के अपनी स्क्रीन देख रहा है, एक दूसरे का मुँह देख रहे कि भाई क्या हो क्या रहा है. And like I legit saw kids crying, like they gave up. They genuinely like नहीं हो रहा. उन्होंने पेपर करना छोड़ दिया बीच में भाई. And as I said like 30 questions होते हैं सेक्शन में, तो it is like people generally tell you कि 15-20 करके आ जाओ, आराम से कट ऑफ निकल जाइए. यहाँ 10 नहीं हो रहे हैं. पता नहीं कुछ भी दिया हुआ है उन्होंने, केस स्टडीज दिए हुए, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, रो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं. भाई पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल चुका था. लाइक पीपल गिव अप, बट डू नॉट डू दैट. लाइक पेपर के बीच में मत गिव अप करो यार. तुमने इतनी मेहनत करी है तो बस ये सोचो कि बस दे के रो दूँगी, पेपर खत्म होगा उसके बाद रो दूँगी. क्या बात है भाई, आधा घंटे 1 घंटे तो डिले करने आता, रोना धोना कर देना. क्योंकि अगर तुम्हें टफ लग रहा है, तुमने मेहनत करके अच्छी से पढ़ाई करे, तो इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो सबके लिए टफ आया है ना. अगर सबके लिए टफ आया तो कट ऑफ ऑब्वियसली लो जानी है भाई. ये ऐसे थोड़ी रिजिड एग्जाम थोड़ी ना है कि ओ इसके ऊपर ही आना चाहिए वरना तो तुम पास या फेल हो जाओगे. ये कट ऑफ इसलिए जाते हैं ना कि वो ओवरऑल देखते हैं कि सबके कैसे कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से दे टेक अ बेस टाइम एंड उसके ऊपर के बच्चे को लाते हैं. तो डोंट डाउट योर सेल्फ यार. एक मैं लिजिट अपने आपको अंदर से बोली थी रोना नहीं, कोई बात नहीं, 10 मिनट बस ये पिक कर लो. तो जैसे तैसे करके आई डिड आई थिंक 12-15 क्वेश्चन तक. वो भी मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि नेगेटिव मार्किंग जो होती है मत करो. काश मैंने अपनी खुद की एडवाइस ली होती. मैंने करे और भाई फिर मेरे उस वजह से कटे भी हैं. मेरा बॉर्डर लाइन एकदम वो आया है कि सेक्शनल कट ऑफ पार हुआ है, क्योंकि मैंने वही गलती करी. मैंने ओन आंसर कर ली क्वेश्चन की. नहीं करनी होती, नहीं आते छोड़ दो. जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ पे करो, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वहाँ छोड़ दो. ठीक है, सीरियसली. एंड देन वर्बल आता है विच इज़ 45 क्वेश्चंस. इट वाज ऑनेस्टली नॉट दैट हार्ड. इस बार का वर्बल वाज नॉट दैट हार्ड. लाइक जितना हमने एक्सपेक्ट करा था 45 में से आई थिंक मैं आराम से डिड लाइक 40 क्वेश्चंस. ठीक था, वो हो गया था. सेकेंड सेक्शन ही बहुत गंदा था और उसमें ही सब ने रो के हंगामा मचा दिया. ठीक है. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग. एक तो टोटल टाइम इज़ 120 मिनट्स फॉर द एंटायर पेपर. जो मैंने बोला ना सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. लाइक यू गेट +4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो अगर तुम्हें सब्जेक्टिव में आंसर भरना है, वैसे तुम क्या ही भरोगे भाई. अगर कुछ दिया हुआ है तो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट देन देयर इज लाइक ऑब्वियसली लाइक व्हाट विल यू डू. लाइक तुम कैसे ही करोगे, बट अगर करना चाहो तो तुम भर सकते हो. लाइक अगर तुम्हें अंदर से कुछ बोल रहे हैं कि हाँ यही आंसर होगा तो लिख दो. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. बट दोनों MCQ सेक्शंस में नेगेटिव मार्किंग है. +4 फॉर राइट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर. तो द टोटल पेपर इज फॉर 360 मार्क्स इंदौर का. एंड इस बार की हमारी कट ऑफ गई है 164. अब इंदौर में एक और चीज़ है, अभी तक मैंने जो भी पेपर्स बोले उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी. अगर तुम्हारे टोटल कट ऑफ से ऊपर आ गई या परसेंटेज तुम्हारी ठीक ठाक आ गई तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा. बट इंदौर में देयर इज लाइक अ वेरी ह्यूज थिंग कॉल्ड सेक्शनल कट ऑफ.
उसमें तुम्हारे तीनों सेक्शंस में कुछ मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, जिसका क्राइटेरिया तुम्हें मीट करना चाहिए। अगर तुम्हारे टोटल मार्क्स 200 आ रहे हैं और कट ऑफ 164 गई है, तब भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो सेक्शनल कट ऑफ, तो इस साल की सेक्शनल कट ऑफ वॉज सेक्शन 1 24 मार्क्स, सेक्शन 2 28 मार्क्स एंड सेक्शन 3 was I think 112. Then I had like CUET on 13th and 14th में। तो CUET में इफ़ इन केस यू डोंट नो, एक एग्ज़ाम नहीं होता है, इट गोज़ ऑन फॉर अ पूरा महीना। फर्स्ट डेट फॉर CUET फॉर हमारा बैच वॉज May 13th एंड द लास्ट डेट फॉर द एग्ज़ाम वॉज सपोज टू बी June 3rd, बट उसके बाद उन्होंने कुछ अकाउंट्स का रीटेक करने की वजह से डेट बढ़ा दी थी। एंड मोहाली में जो ऑपरेशन दूर हुआ था उसकी वजह से भी थोड़े से एग्जाम्स छूट गए थे, तो उनको भी री कराने के लिए डेट्स बढ़ गई थी, बट इट वॉज सपोज टू बी फ्रॉम May 13 to June 3rd। तो तुम्हारी कोई भी डेट आ सकती है, दैट इज़ नॉट लाइक तुम्हारे ऊपर नहीं है वो कौन से सब्जेक्ट्स कब आ रहे हैं, यू कैन नॉट चूज़ दैट शिफ्ट सेंटर कुछ भी, दैट इज़ ऑल अप टू NTA। एंड या लाइक मेरे फ्रेंड्स थे जिनका एक एग्ज़ाम वॉज ऑन May 16th एंड अनदर वॉज ऑन June 3rd, लाइक इतना बड़ा गैप। सो यू कॉन्ट रिलेट टू एनीथिंग अबाउट इट, ईमेल वगैरह लिखोगे कुछ फ़ायदा वैसे होगा नहीं, बट या यू जस्ट हैव टू गो विद इट। आई वॉज रियली लकी, मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड डे पे ही हो गया, जैसे May 13 से CUET स्टार्ट होना था एंड मुझे मेरा फर्स्ट एग्जाम वॉज May 13 फर्स्ट शिफ्ट ओनली, सो इट वॉज प्रिटी गुड। मेरे सब्जेक्ट्स ऑन May 13 वर इंग्लिश एंड इको। तो 1 घंटे का पेपर होता है, बैक टू बैक होता है, यू कॉन्ट रियली गेट अप फ्रॉम द सीट। तो इंग्लिश CUET का आई थॉट इट वॉज क्वाइट ईजी एंड इट वॉज लाइक मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, मेरा इको भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। आई थिंक आई फिनिश्ड इको इन लाइक 20 minutes। एंड इन केस यू वर नॉट अवेयर, फॉर्मेट हमारे में चेंज हुआ था लास्ट ईयर तक। देयर वाज अ थिंग कि 50 क्वेश्चंस दिए होंगे एंड इनमें से यू हैव टू डू एनी 40 क्वेश्चंस, 10 तुम छोड़ सकते हो जो तुम्हें नहीं आते हैं। बट हमारे बैच से दे मेड आउट अ न्यू रूल कि तुम्हें 50 क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे, लाइक यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू लीव आउट एनी क्वेश्चन, तुम्हें सारे करना कंपलसरी है। ना ऑब्वियसली कंपलसरी का मतलब नेगेटिव मार्किंग फिर भी है, बट कंपलसरी मतलब तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। लाइक अगर तुम पहले छोड़ देते थे तो उनको कंसिडरेशन में लिया नहीं जाता था, बट इसको लिया जाएगा, तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगेन इसमें +5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। टोटल पेपर होता है 250 मार्क्स का। तो इको हमारे टाइम पे बिकॉज दे इंट्रोड्यूस दिस न्यू थिंग एंड टाइम लिमिट उतना ही था 60 minutes, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 बढ़ गए थे। सो आई थिंक दैट्स वाई उनको हम पे थोड़ी दया आ गई एंड दे वर लाइक चलो हम थोड़ा सा सिलेबस कम कर देता है। सो आई एम नॉट गोना लाई, हमारा लाइक जो भी आउट ऑफ डिलीटेड स्टफ होता है ना वो निकल गया था। हमारा मोस्टली CBSE आया था, बस इको में एक प्रॉब्लम थी कि CBSE के लिए हमने पढ़ी थी मैक्रो एंड IED इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट हमें CUET के लिए माइक्रो पढ़नी पड़ी जो हमने 11th में पढ़ी थी। तो हमें वो पूरा सिलेबस ऑब्वियसली एक साल पहले का किसको याद रहेगा भाई, तो पेपर देने के बाद ही भूल जाता है, तो हमें वो पूरा करना पड़ा था। इट वॉज थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक, बट हो जाता है यार, अगर तुम साइड बाय साइड करो तो निकल जाएगा, ठीक है। एंड देन ऑन 14th आई हैड मैथ्स, अकाउंट्स एंड GT। मैंने हमारे में यू कुड चूज़ लाइक 5 सब्जेक्ट्स, पहले 6 सब्जेक्ट्स होते थे, हमारे में यू कुड ओनली चूज़ 5 सब्जेक्ट्स। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग BST विच आई हैड फॉर CBSE अंडर कॉमर्स, आई टुक GT बिकॉज उसकी वजह से आई कुड परस्यू प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BMS एक्सेट्रा। तो दैट्स वाई आई चोज GT। अगेन इसमें इट्स वेरी वास्ट, ठीक है। इसमें यूजुअली स्टैटिक आता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, लाइक उनमें CA वगैरह ज़्यादा आता है, बट इसमें GT में स्टैटिक भी अच्छा खासा आता है, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मिसलेनियस, इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। I think there was a question हमारे पेपर में, which of the following US presidents has not gotten a Nobel Peace Prize? That was one question. And there are other questions too. ऐसे आते हैं, जैसे I'll put the link below which personally helped me, so you can see. Like I'm not saying कि it is covering all of these topics because 1 महीना था यार, मैंने बोर्ड से पहले ज़्यादा GT GK की प्रिपरेशन करी ही नहीं थी। मैंने जो भी प्रिपरेशन करी है वो 1 महीने में है, तो तुम मेरी वाली गलती मत करना। यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स और अदर स्टफ पूरे साल भी धीरे धीरे करके, बट मैंने 1 महीने में पूरा क्रैम करा था, तो जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना ही करा। एंड आई जस्ट वांट यूज़ माई रिसोर्सेज टू हेल्प यू ऑल।
so you can just go through them once and see if it helps you थोड़ा सा भी. Other than that ऐसा कुछ नहीं था. Oh right, मैथ्स में इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम सारे 50 और 50 क्वेश्चंस कर पाओगे इन 60 मिनट, देन यू आर वेरी रॉन्ग, वेरी 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 रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं MCQ जो तुम 1 मिनट में निकाल लो. तो आई वुड सजेस्ट LPP के क्वेश्चन थोड़े पीछे कर दो बिकॉज दे आर वेरी लेंदी. राइट. एंड बाकी फॉर मी कैलकुलस वॉज ईजी. कैलकुलस हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट, तो आई ट्राई टू डू कैलकुलस सबसे पहले. अब एंड मैथ्स पेपर का फॉर्मेट ऐसा होता है कि अप्लाइड और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होती है, तो उसमें दोनों 2 सेक्शंस ये होते हैं. एक सेक्शन इज़ कंपलसरी फॉर बोथ. ठीक है, तो उसमें दोनों के क्वेश्चंस मिक्सड आए होते हैं, उसमें ऑब्वियसली फिर ट्रिको वगैरह नहीं होती है. एंड जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें तुम्हें चूज़ करना होता है. तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले तो तुम्हें वो वाला पैटर्न चूज़ करना पड़ेगा, और तुम स्टैंडर्ड मैथ्स वाले तो तुम्हें वो वाला चूज़ करना पड़ेगा. एंड उसमें फिर आगे जाकर तुम अपना पेपर दे सकते हो. तो मेरे पास तो स्टैंडर्ड मैथ्स थी, सो मैं उसी के हिसाब से बता सकती हूँ. डिफरेंशियल अच्छी खासी आई थी. LPP के 2-3 क्वेश्चन आए थे. प्रोबेबिलिटी अच्छी आई थी. एंड एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है मैच द फॉलोइंग वाले, तो वो भी आते हैं. सो डेफिनेटली लाइक उसको थोड़ा सा ऐसे माइंड सेट बना के रखना. आई थिंक आई वॉज एबल टू डू अराउंड 46 क्वेश्चन आउट ऑफ 50. भाई वो 4 क्वेश्चन तो मैं LPP के भाई 2 छूट गए थे मेरे. एंड ऑनेस्टली लाइक ऑन एन एवरेज लोगों के 5-6 छूट रहे थे. सो डू नॉट वरी, एज मैंने इंदौर के वक्त बोला, ट्रस्ट योर सेल्फ. अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो बाकी सबसे भी नहीं हो पा रहा होगा. डू नॉट टेक योर सेल्फ डाउन, स्पेशली एग्जाम के बीच में. एग्जाम के बाद में जाकर तुम्हें जितना रोना थोड़ा है तुम कर लो भाई, तुम्हारा राइट है, तुमने मेहनत करी, उसके बाद तुम्हारा पेपर अच्छा ना जाए, ऑब्वियसली रोना आता है, इट्स नेचुरल. बट एग्जाम के बीच में डू नॉट रूइन दैट. पेपर दो, ठीक है. अकाउंट्स हमारी बहुत ही आई थी. इट वॉज मोर थ्योरी बेस्ड एक्चुअली, प्रैक्टिकल कम आता कंपेरेटिवली. इको में हमारी मैक्रो के ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन आ गए थे. इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे वोकैब में ही कटे थे, जो भी मेरे कटे हैं. देन ऑन 18th May आई हैड Xavier's. आई टुक द कोर्सेज BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़. तो इसके सेक्शंस वर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स 30%, मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 30%, LR क्रिटिकल एनालिसिस 25%, and English 15%. Total paper is for 100 marks. Total time is 120 minutes, 1 mark each, no negative marking. Honestly, the chillest paper I gave. Like भाई ये पेपर बहुत chill था. Calculators were allowed, which was a big thing, कुछ और कहीं अलाउड नहीं था. बट इट डिड हैव सम प्रिटी गुड कैलकुलेशंस, लाइक जो केस स्टडीज़ होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, उसमें अच्छे खासे कैलकुलेशंस थे. तो मेक सेंस कि कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए, वरना पेपर ही कंप्लीट ना होता. एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट गोना लाई, इसका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी अच्छा था यार. बट इट कैन ऑल्सो भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे दे ही दिए थे ऐसे एग्जाम्स, तो मुझे थोड़ी सी आदत हो गई थी. थोड़ा तो दिमाग में चला गया था कि ओ ये सब होता है, हमारा कौन कौन है. तो maybe that's why I felt it was easy. But हाँ, it was. Economics वगैरह भी इसमें आती है, which was also pretty good. Like ऐसे ज़्यादा बहुत हार्ड लेवल नहीं था. I'm not saying about CBSE level, but CBSE level थोड़ा सा ऊपर था. कर लोगे अगर इफ़ यू नो लाइक द सब्जेक्ट मैटर. सिर्फ रटने के लिए नहीं रटा है, लाइक पढ़ा है, बट अगर तुम अच्छी से सब्जेक्ट मैटर अंदर से जानते हो, देन तुम दे दोगे. It's actually pretty nice. Then I had जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर May 25th को. मेरी कोर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज BBA. तो इसमें सेक्शंस बहुत सारे होते हैं. इट इज़ लो की लाइक CBSE लेवल का पेपर ही यार. इसमें अकाउंटेंसी होते हैं 15 मार्क की, BST होती है 20 मार्क की, मैक्रो एंड ID होती है 15 मार्क्स की, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होते हैं 10 मार्क के, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस आर फॉर 10 मार्क्स, LR 10, English 10 and general awareness 10. So I'm not gonna lie, the hardest sections in this paper were information practices and general awareness. But it was honestly a very good paper. The time was around 1 hour 45 minutes, and I was able to complete the paper very early. I was able to do it in 40 minutes. Maybe the thing was that I was just really tired of giving papers back to back. I was genuinely so tired. I did not care, bro. इस पेपर तक आते आते मेरी सारी विल पावर, मेरी मोटिवेशन चली गई थी भाई. तो आई जस्ट गेव द पेपर फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट. तो इसलिए मैंने ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करा मेरे आंसर्स पर. प्लस पेपर वॉज एक्चुअली ईजी. CBSE लेवल का ही था जो मैंने तुम्हें हमारे सब्जेक्ट था कॉमर्स वालों के, दैट वॉज CBSE लेवल वाले. तो तुमसे आराम से निकल जाना चाहिए वो. इट्स नॉट अ बिग डील. आई थिंक 100 में से आई वॉज एबल टू डू अराउंड 85 प्लस क्वेश्चन. 85 प्लस क्वेश्चन मेरे निकल गए थे. वन मोर थिंग, दिस पेपर इज़
ऑन OMR, like पेन एंड पेपर. बाकी सारे पेपर्स CBT थे, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बट दिस ये अकेला एग्ज़ाम था जो कंप्यूटर बेस्ड नहीं था. वी हैड टू गिव इट ऑन पेन एंड पेपर और उसके बाद अपनी OMR भी फिल करनी है. एंड इसमें अगेन +1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर डिडक्टेड. देन आई ऑल्सो अप्लाई टू ISI, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. ये शॉकिंगली बहुत बच्चों को नहीं पता है, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज इट्स लाइक सच अ ग्रेट इंस्टीट्यूट. एंड इसमें CUET के मार्क्स लग रहे हैं. सो आई डिड नॉट हैव टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, विच आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर बिकॉज आई रियली जेन्युइनली वॉन्टेड टू अप्लाई हियर. एंड इसमें जो तुम्हारे मार्क्स लगेंगे इट विल बी मैथ्स एंड इंग्लिश CUET मार्क्स. सो आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली अप्लाई देयर. इट इज़ गुड इंस्टीट्यूट. But yeah, that's it. That was all the entrance exams I gave. So I guess 25th May was finally the date मेरे entrances ख़त्म हुए. और उसके बाद आता है इंटरव्यू का चक्कर. तो you cannot just sit still at home. But हाँ, थोड़ा सा तुम्हें chill off, cool off करने का टाइम मिलता है. Oh, I also did apply to other like IIM programs, but they were affiliated to IIM Indore only. तो मैंने उनको अलग से बताया नहीं है. तो या अदर देन दैट, इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो लाइक मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स या फिर क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है IB मैथ्स CUET या किसी भी और एग्जाम के लिए, आई कैन डू दैट इंटरव्यू बिकॉज आई एम गोइंग टू डू दैट. एंड इवन CBSE, इफ़ यू वांट एनी हेल्प विद जस्ट लेट मी नो एंड आई मेक अ वीडियो ऑन इट. ऑलराइट, बाय, सी यू.